Hello guys, how are you? Hope you guys are good. Welcome to Aspiring Classes. Today we will discuss lesson 5 Footprints Without Feet written by H.G. Wells. Now I give you small introduction about the lesson. This story is about a scientist. यह कहानी एक साइंटिस्ट के बारे में है. His name was Griffin, जिसका नाम ग्रिफिन है. One day he discovered a wonderful drug. एक दिन वह एक अद्भुत दवाई की खोज करता है. दिस ड्रग कुड मेक हिम इनविजिबल और यह दवाई लेने से वह इनविजिबल अदृश्य हो जाता है. He set his landlord house on fire और वह अपने मकान मालिक के घर को आग लगा देता है. Then he took the drug. जब वह दवाई लेता है he became invisible. वह अदृश्य हो जाता है. He could see everybody. वह तो हर किसी को देख सकता है. But nobody could see him. परंतु और कोई उसको नहीं देख सकता. It was very cold. बहुत ठंड का टाइम था. He was without clothes और वह बिना कपड़ों के था. He went into the store. वह एक स्टोर में गया. He passed his night there और उसने अपनी रात वहाँ पे बिताई. He stole money and clothes from there. उसने वहाँ से पैसे और कपड़े चुराए. He went to a village called Iping. उससे वह आइपिंग गांव में गया. There he stayed at an inn और वहाँ पर वह एक सराय में रुका. He stole some money. उसने कुछ पैसे चुराए. The police was called. पुलिस को बुलाया गया. But he became invisible and escaped from there. परंतु वह अदृश्य हो गया और वहाँ से बच. Lesson 5 Footprints without feet. Can a man become invisible? क्या एक मनुष्य अदृश्य हो सकता है? This is the story of a scientist who discovered how to make himself invisible. यह कहानी एक साइंटिस्ट की है जिसने खोजा कि किस प्रकार से खुद को इनविजिबल अदृश्य किया जा सकता है. Does he use or misuse his discovery? वह अपने डिस्कवरी का अच्छे से यूज करता है या उसका मिसयूज करता है. Read and find out. Question 1. How did the invisible man first become visible? अदृश्य आदमी पहली बार किस प्रकार से दृश्य बना? The invisible man entered a big London store. अदृश्य आदमी ने एक बहुत बड़े लंदन के स्टोर में एंटर किया. He broke open boxes and wrappers and fitted himself with warm clothes. उसने संदूक और रैपर्स को खोला और उसमें जो गर्म कपड़े थे उसमें अपने आप को फिट किया. He wore shoes, an overcoat and a hat. उसने जूते पहने, एक ओवरकोट और एक हैट पहना. Now he was a fully visible man. अब वह पूर्ण रूप से एक दृश्य आदमी था. Why he was wandering the street? वह गलियों में क्यों भटक रहा था? Griffin had set fire to his landlord's house. Griffin ने अपने मकान मालिक के घर को आग लगा दी थी. He feared lest the police should catch him. और उसे डर था कि पुलिस उसे पकड़ लेगी. So he was invisibly wandering the street of London. इसलिए वह लंदन की गलियों में इनविजिबली अदृश्य रूप से घूम रहा था. The two boys started in surprise at the fresh mud imprints of a pair of bare feet. दो लड़कों ने कीचड़ के ऊपर नंगे पांव के ताजा निशान देखे और वे चौंक गए. What was a barefooted man doing on the steps of a house in the middle of London? लंदन के बीच में एक घर में सीढ़ियों पर बेयरफुट होता है जिसमें नंगे पांव आदमी के निशान थे. एंड वेयर वाज द मैन और आदमी कहाँ था? As they gazed, a remarkable sight met their eyes. जब वे उसको हैरानी से देख रहे थे तभी एक विचित्र दृश्य हुआ. A fresh foot marks appeared from nowhere. पता नहीं कहाँ से एक ताजा पैरों का निशान अपीयर हो गया. Further footprints followed one after another. एक के बाद एक. Descending the स्टेप से नीचे उतरते हुए एंड प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट और गली में आगे बढ़ते हुए. द बॉयज फॉलोड. लड़कों ने उसका पीछा किया. फैसिनेटेड until the muddy impression became fainter and fainter. जब तक कि कीचड़ के निशान धुंधले न हो गए. एंड एट लास्ट डिसअपीयर्ड ऑलटुगेदर. और बिल्कुल ही खत्म ना हो गई. The explanation of the mystery was really simple enough. और इसकी रहस्य की जो explanation थी वो बहुत ही ज्यादा आसान थी. The bewildered boy had been following a scientist who had just discovered how to make the human body transparent. Transparent का मतलब पारदर्शी. जो The bewildered boy had been following a scientist. जो लड़के थे वो एक ऐसे साइंटिस्ट का पीछा कर रहे थे जिसने अभी अभी ये डिस्कवर किया था कि किस प्रकार से मनुष्य की बॉडी को पारदर्शी किया जा सकता है. Griffin, the scientist, had carried out experiment after experiment to prove that the human body could become invisible.
ग्रिफिन जो साइंटिस्ट था वो एक के बाद एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था ये प्रूव करने के लिए कि जो मनुष्य का शरीर है उसको अदृश्य किया जा सकता है। Finally, he swallowed certain rare drug and his body became as transparent as a sheet of glass. अंत में उसने कुछ दवाइयां निकली और उसकी बॉडी उस प्रकार एक शीशे की भांति ट्रांसपेरेंट हो गई। Though it also remained as solid as a glass, और यह शीशे की भांति ठोस भी थी। ब्रिलियंट साइंटिस्ट दाउ ही वाज, यद्यपि वह एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट था, ग्रिफिन वाज रेदर ए लॉलेस पर्सन, लेकिन वह कानूनी नियमों को न मानने वाला था। हिज लैंडलॉर्ड डिसलाइक हिम, उसका मकान मालिक उसे पसंद नहीं करता था, एंड ट्राई टू इजेक्ट हिम, और उसे निकालना चाहता था, इजेक्ट में निकालना। इन रिवेंज, बदले के कारण, ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस, ग्रिफिन ने मकान मालिक के घर को आग लगा दी। टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन ही हैड टू रिमूव हिज क्लोथ, किसी को पता ना चले इसलिए उसने वहां से भागने के लिए अपने कपड़े उतार दिए। Thus it was that he became a homeless wanderer, होमलेस बिना घर के, इस प्रकार से वह एक बिना घर के बेघर हो गया। Without clothes, without money and quite invisible until he happened to step in some mud and left footprints as he walked. बिना कपड़ों के, बिना पैसों के और बिल्कुल ही इनविजिबल, until he happened to step in some mud and left footprints as he walked. उसके पांव कहीं कीचड़ में पड़े और जैसे ही वह चला उसके निशान बन गए। He escaped easily enough from the boys who followed his footprints in London. ब्राउन लड़कों से आसानी से बच निकला जो लंदन में उसके पैरों का पीछा कर रहे थे। But his adventures were by no means over, परंतु उसके साहसिक कार्यों का यही अंत नहीं था। He had chosen a bad time of the year to wander about London without clothes. उसने लंदन में घूमने के लिए साल का बहुत ही गलत टाइम चूज किया था। It was midwinter, सर्दी की मध्य का टाइम था। द एयर वाज बिटरली कोल्ड, हवा बहुत ठंडी थी। एंड ही कुड नॉट डू विदाउट क्लोथ, वह कपड़ों के बिना कुछ नहीं कर सकता था। इंस्टेड ऑफ वॉकिंग अबाउट द स्ट्रीट, गलियों में घूमने की बजाय, ही डिसाइडेड टू स्लीप इनटू अ बिग लंदन स्टोर फॉर वार्मथ। उसने डिसाइड किया कि वह लंदन के बहुत बड़े स्टोर में जाएगा और वहां पे अपने आप को गर्म करेगा। क्लोजिंग टाइम अराइव्ड, स्टोर को बंद करने का टाइम आ गया। एंड एज सून एज द डोर वर शट, और जैसे ही दरवाजे को बंद किया गया, ग्रिफिन वाज एबल टू गिव हिमसेल्फ द प्लेजर ऑफ क्लोथिंग, ग्रिफिन अपने आप को कपड़े पहनने का आनंद देने के योग्य हो गया। एंड फीडिंग हिमसेल्फ विदाउट रिगार्ड टू एक्सपेंस, और बिना खर्चा किए अपने आप को खिलाने का। He broke open boxes, उसने संदूकों को खोला, एंड रैपर्स, एंड फिटेड हिमसेल्फ आउट विद वार्म क्लॉथ, और अपने आप को गर्म कपड़े में गर्म किया। Soon with shoes and overcoat and a wide brimmed hat, उसने जूते, एक ओवरकोट, एक हैट पहनी। ही बिकम ए फुली ड्रेस एंड विजिबल पर्सन, अब वह बिल्कुल ही पूर्ण रूप से एक दृश्य आदमी बन गया। इन द किचन ऑफ द रेस्टोरेंट ही फाउंड कोल्ड मीट एंड कॉफी, रेस्टोरेंट के किचन में उसने ठंडी मीट और कॉफी मिली। एंड ही फॉलोड अप द मील विद स्वीट, और उसने खाने के बाद मिठाई खाई। एंड वाइन पी एंड टेक फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर। Finally, he settled down to sleep on a pile of quilts. रजाइयों, पाइल ऑफ क्वाइल्स मीन्स रजाइयों का ढेर, और अंत में वह रजाइयों के ढेर पे सो गया। If only Griffin had managed to wake up in a good time, all might have been well. अगर ग्रिफिन सुबह टाइम से उठ जाता तो सब कुछ ठीक रहता। As it was, he did not wake up until the assistant were already arriving next morning. परंतु वह तब तक नहीं जागा जब तक कि असिस्टेंट नहीं आ गए। When he saw a couple of them approaching, जब उसने उन दोनों को आते हुए, he panicked and began to run. जब उसने स्टोर के अंदर दो सिपाहियों को आते हुए देखा तो वह घबरा गया और डर के भागने लगा। They naturally gave chase, उन्होंने उसका पीछा किया। In the end, he was able to escape only by quickly taking off his newly found clothes. अंत में वह भागने में तभी समर्थ हुआ जब उसने अपने नए कपड़े एक के बाद एक करके उतारे। So once more he found himself invisible but naked in the chilling January air. इस प्रकार से उसने एक बार फिर जनवरी की ठंडी हवा में अपने आप को अदृश्य और नंगा पाया। This time he decided to try the stock of a theatrical company in the hope of finding not only clothes. theatrical कंपनी होती है जो नाटक कंपनी में, नाटक की जो कंपनी होती है उसको theatrical कंपनी कहते हैं। इस टाइम उसने डिसाइड किया कि वह किसी नाटक कंपनी में जाकर होप ऑफ फाइंडिंग नॉट ओनली क्लॉथ में जाएगा और केवल कपड़े ही नहीं पहनेगा, बट आल्सो समथिंग दैट वुड हाइड द एम्प्टी स्पेस अबव हिज शोल्डर,
बल्कि कुछ ऐसा भी पाएगा जिससे कि उसका जो शोल्डर के ऊपर का खाली स्पेस है वो भी ढक जाएगा। Shivering with cold, he hurriedly to Drury Lane, the enter of the थिएटर वर्ड ड्यूरी लेन के अंदर जो थिएटर वर्ड था उसमें उसने कांपते हुए प्रवेश किया। He soon found a suitable shop, उसने जल्दी एक सही शॉप मिल गई। He made his way invisible upstairs and came out a little later wearing bandage, वह इनविजिबल था और सीढ़ियों से ऊपर गया और उसने जल्दी ही अपने माथे के चारों ओर बैंडेज बांधी, डार्क ग्लास पहने, एक फाल्स नोज लगाई, बिग बस्सी वाइट विस्कर्स और मूछें लगाई एंड ए लार्ज हैट और एक लार्ज हैट पहना। टू एस्केप विदाउट बीइंग सीन, बिना किसी को दिखाई दिए भागने के लिए, हैक ही कैलेबली अटैक्ड द शॉपकीपर फ्रॉम बिहाइंड, उसने शॉपकीपर के पीछे से अटैक किया। आफ्टर विच ही रोब्ड हिम ऑफ ऑल द मनी ही कुड फाइंड, उसके बाद उसने उसके सारे पैसे लूट लिए जितने भी उसको मिले। Did and find out question 1. Why does Mrs. Hall find the scientist eccentric? मिसिस हॉल को जो साइंटिस्ट था वो सनकी क्यों लगा? ग्रिफिन केम टू आइपिंग इन विंटर, क्योंकि जो ग्रिफिन था वो आइपिंग में सर्दी में आया था। हिज कमिंग एट दैट टाइम वाज स्ट्रेंज, और उसका वहां पे आना एक विचित्र बात थी। हिज अपीयरेंस एंड हैबिट वर आल्सो स्ट्रेंज, उसकी जो आदतें थी वो भी बहुत ज्यादा अजीब थी। सो मिसिस हॉल फाइंड्स द साइंटिस्ट इसेंट्रिक। क्वेश्चन 2. व्हाट क्यूरियस एपिसोड ओकर इन द स्टडी रूम में कौन सा एक विचित्र घटना हुई? One day early in the morning, the clergyman and his wife heard noise in their study room. क्लर्जीमैन और उसकी वाइफ ने स्टडी रूम से सुबह सुबह कुछ आवाजें सुनाई दिए। दे वेंट डाउनस्टेयर्स, वे सीढ़ियों से नीचे आए। दे हर्ड द चिंक ऑफ मनी, उन्हें पैसों की आवाज सुनाई दी। समवन वाज स्टीलिंग मनी फ्रॉम द डेस्क, कोई डेस्क में से पैसों को चुरा रहा था। दे ओपन द डोर साइलेंटली, उन्होंने चुपचाप डोर को खोला। बट दे वर सरप्राइज टू फाइंड द रूम एम्प्टी, परंतु वे हैरान थे कि रूम में कोई नहीं था। येट द मनी वाज मिसिंग, परंतु जो पैसे थे वो गुम थे। डेट वाज सीरियस एपिसोड। क्वेश्चन 3. What other extraordinary things happened at that time? सराय में और कौन सी विचित्र घटनाएं घटी? फर्स्ट, मिसिस हॉल हियर्ड ए स्नीफ क्लोज टू हर ईयर, सबसे पहले श्रीमती हॉल को अपने कान के पास एक स्निफ, सांस लेने की आवाज सुनी। दिस वॉज वेरी स्ट्रेंज एज शी डिड नॉट सी एनीवन नियर हर, और यह बहुत अजीब था क्योंकि उसने अपने आसपास किसी को नहीं देखा। सेकेंडली, द हैट लेफ्ट अप एंड स्ट्रक हर फेस, दूसरी बात थी कि जो हैट था वो उछला और उसके फेस से टकराया। थर्डली, द बेडरूम चेयर स्प्रिंग इनटू द एयर, जो बेडरूम की चेयर थी वो हवा में उछली एंड अटैक किया। These were three extraordinary things. Eager to get away from crowded London, he took a train to the village of Iping. लंदन की भीड़भाड़ से बच निकलने के लिए उसने आइपिंग गांव की एक ट्रेन ली। Where he booked 2 rooms at the local inn, वहां पे उसने इन मैंने सराय में 2 रूम बुक किए। The arrival of a stranger at an inn in winter was in any case an unusual event. Unusual मैंने असाधारण, सर्दी के मौसम में किसी अजनबी का सराय में आना एक असाधारण घटना थी। स्ट्रेंजर ऑफ सच अनकॉमन अपीयरेंस एट ऑल टंग वेगिंग, वेगिंग मतलब बातचीत का विषय बनना। टंग वेगिंग का मीनिंग होता है बातचीत का विषय बनना। एक असाधारण अपीयरेंस वाले एक अजनबी का आना लोगों की बातों का विषय बन गया। मिसिस हॉल द लैंडलॉर्ड्स वाइफ मेड एवरी एफर्ट टू बी फ्रेंडली, फ्रेंडली मैंने मित्रतापूर्ण। श्रीमती हॉल जो लैंडलॉर्ड की वाइफ थी उसने ग्रिफिन के साथ मित्रतापूर्वक व्यवहार करने का पूरा प्रयास किया। बट ग्रिफिन हैड नो डिजायर टू टॉक, लेकिन ग्रिफिन की बात करने की कोई इच्छा नहीं थी। एंड टोल्ड हर, कहा, माई रीजन फॉर कमिंग टू आइपिंग इज ए डिजायर फॉर सोलिट्यूड, मेरा यहाँ पे आने का मतलब सिर्फ अकेले रहना है। आई डोंट विश टू बी डिस्टर्ब इन माई वर्क, मैं नहीं चाहता कोई मुझे काम में डिस्टर्ब करे। बिसाइड, इसके अतिरिक्त, एन एक्सीडेंट हैड अफेक्टेड माई फेस, एक एक्सीडेंट से मेरा फेस प्रभावित हो गया था। सेटिस्फाइड दैट हर गेस्ट वाज एन सेंट्रिंग साइंटिस्ट, मिसिस हॉल इस बात से संतुष्ट थी कि उसका जो गेस्ट है एक सन की साइंटिस्ट है। एंड इन व्यू ऑफ द फैक्ट दैट ही हैड पेड हर इन एडवांस, और उसने किराया भी पहले ही दे दिया था। मिसिस हॉल वाज प्रिपेयर टू एक्सक्यूज हिज स्ट्रेंज हैबिट एंड इरिटेबल टेम्पर, इसलिए मिसिस हॉल उसकी अजीब बातों को और उसके इरिटेबल टेम्पर को सहन कर लिया। बट द स्टोलन मनी डिड नॉट लास्ट लॉन्ग, लेकिन जो उसने पैसे चुराए थे वो अधिक समय तक नहीं चले। एंड प्रेजेंटली ग्रिफिन हैड टू एडमिट दैट ही हैड नो मोर रेडी कैश, और अंत में ग्रिफिन को यह बात स्वीकार करनी पड़ेगी उसके पास और
कैश नहीं है। ही प्रिटेंडेड, वह दिखावा करता है, दैट ही वाज एक्सपेक्टिंग ए चेक टू अराइव एट एनी मोमेंट, कि किसी भी टाइम उसके पास कोई चेक आ सकता है। शॉर्टली आफ्टरवर्ड ए क्यूरियस एपिसोड ओकर, इसके बाद ही एक विचित्र घटना घटती है। वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग ए क्लर्जीमैन एंड हिज वाइफ वर अवेकन्ड बाय नॉइसेस इन द स्टडी। क्लर्जीमैन पादरी और उसकी वाइफ स्टडी रूम में कुछ आवाजें सुनकर जाग जाते हैं। क्रीपिंग डाउनस्टेयर्स में नीचे आना, धीरे धीरे रेंगते हुए नीचे आना। दे हर्ड द चिंक ऑफ मनी बीइंग टेकन फ्रॉम द क्लर्जीमैन डेस्क, वे क्लर्जीमैन के डेस्क से पैसों को चुराए जाने की आवाजें सुनते हैं। विदाउट मेकिंग एनी नॉइस, बिना कोई शोर किए हुए, विद द पोकर ग्रेव फर्मली इन हिज हैंड, अपने हाथ में लोहे की एक छड़ को पकड़े हुए, द क्लर्जीमैन फ्लंग ओपन द डोर, क्लर्जीमैन एकदम से ही ओपन द डोर को खोल देता है।